Good morning, class 12. In accountancy class, today's our chapter is resolution and the topic is journal entry questions of resolution. So let us start with the example number 38 and example number 39. So here is the example number 38 and the statement is, give the necessary journal entry for the following transaction: dissolution of Anita and Ravi on 31st March 2016. हमने सभी एसेट्स को और सभी लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया एंड देयर आर टू पार्टनर अनीता एंड रवि एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. So in first case the statement is Ravi was to get a remuneration 23,000 for completing the dissolution process. He also agreed to bear realization expenses and realization expenses 10,000 were paid by Ravi from the firm cash. Right? So in the first case, total 23,000, a fixed amount is given to the partner Ravi and the responsibility given to the partner Ravi to completing the dissolution process, and the realization expenses is rupees 10,000, but this expenses is to be paid by the firm. Responsibility किसकी है? पार्टनर की, पर पे कौन कर रहे हैं? फर्म. सो वेन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की होती है और पे फर्म करता है तो हम एंट्री करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो लेट अस स्टार्ट एग्जांपल नंबर 38. फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिक्स अमाउंट हमने 23,000 फर्म ने रवि को पे किया. तो सबसे पहले इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन की दो पार्ट में एंट्री होगी. फर्स्ट पार्ट में 23,000 फिक्स अमाउंट देने की एंट्री, realization account debit to Ravi, capital account 23,000 and the narration is fixed amount of commission paid to Ravi. Then there is a total expenditure of 10,000 for realization which are paid by the firm. Responsibility has to be bear by the partner. पार्टनर को बियर करना था, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन फर्म पे कर रही है. तो जब पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म पे करती है, सो द एंट्री विल बी मेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. It means Ravi capital account debit to cash account and the narration is expenses paid by the firm. Second transaction is that Amitesh, an old customer whose account 60,000 was written off as bad debts in the previous year, paid 90,000. 60,000 के हमारे debtors हैं और उसमें से हमें 90% मिला है. So entry, it means the debtor are realized, transfer to the credit side of realization, bank account debit to realization 60,000 का 90% हमारा realized हुआ. Transaction number third is creditor 40,000, expected future value 38,000 in full settlement of their claim. क्रेडिटर्स है 40,000 के और 38,000 का फर्नीचर वो अपने फुल क्लेम में सेटलमेंट कर रहे हैं. तो जब किसी लाइबिलिटी के लिए हम कोई एसेट्स की सेटलमेंट करते हैं तो उसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती. नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी मेड फॉर द सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी अगेंस्ट एसेट्स. देन लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड रुपीज 3 लाख थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन. 3 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग से किया, 3 लाख का 2% 6,000 इसमें से माइनस कर देंगे बेटे. सो द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन. लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,94,000. 6,000 ऑफ ब्रोकरेज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इट. देन हमारे पास 500 फर्म ने 500 शेयर परचेज किए, 40 रुपीज का एक शेयर है. दिस इज एन इन्वेस्टमेंट. इसके बाद इसकी कॉस्ट थे 22,000 जो कि फर्म ने बुक्स में से बिल्कुल कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया था. अब ये शेयर 500 शेयर, अब ये शेयर 50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. इट मींस इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन बाय द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो 500 शेयर का 50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बनी बेटे 25,000. 25,000 की एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर अनीता एंड रवि इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. It means 25,000 का 3/5 taken by Anita and 2/5 taken by Ravi. So the entry will be made Anita capital account debit 15,000, Ravi capital account debit 10,000 to realization account with rupees 25,000. Right? Next is profit of realization was rupees 45,000. This profit of realization transferred to the partner in their profit sharing ratio, and when the profit is to be distributed among the partner will be credited and the entry is realization account debit to Anita capital account to Ravi capital account in their profit sharing ratio. Yes, now students, the example number 39. See the example number 39 now. Rohit, Kunal and Sarthak partners हैं.
फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं और हमें कुछ एंट्रीज की एडजस्टमेंट करनी है। एंड द फर्स्ट एंट्री इज कुणाल एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन 6000. इट मींस द पार्टनर टेकिंग द लायबिलिटी. जब पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं देन द एंट्री विल बी मेड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. And when assets taken over by the partner, then the entry is partner capital account debit to realization. तो अब यहाँ पर पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, सो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल अकाउंट विद ₹6000. देन द सेकेंड इज टोटल क्रेडिटर्स है बेटे 40,000 के, और इसमें से 10,000 के क्रेडिटर्स को हमने फर्नीचर 8,000 का दे दिया और बाकी के क्रेडिटर्स को हमने 10% डिस्काउंट पे किया. सो टोटल क्रेडिटर्स आर 40,000. इसमें से 10,000 के क्रेडिटर्स की बेटा सेटलमेंट हो चुकी है, रिमेनिंग बचे 30,000. 30,000 को हमने 10% डिस्काउंट पे किया. इट मींस 30,000 में से हमें 3,000 कम पे किए, तो 30 में से 3 कम पे किए. इट मींस 27,000 इज पेड फॉर द क्रेडिटर्स एंड एंट्री विल बी मेड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद ₹27,000. नेक्स्ट इज रोहित इज ए पार्टनर एंड रोहित ने फर्म को लोन दिया हुआ था 70,000 का, और जब फर्म डिसॉल्व हुई तो पार्टनर के लोन की पेमेंट कर दी गई. सो व्हेन द पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन इज टू बी मेड देन द एंट्री विल बी मेड हियर रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउnt. Next transaction is a machine. A machine which was recorded in the books was taken over by Kunal 3,000 where is its expected value 5,000. एक मशीन जो पार्टनर कुणाल ने टेक ओवर कर ली है, उसने टेक ओवर की है 3,000 में, जबकि इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 5,000. तो पार्टनर ने जिस वैल्यू में टेक ओवर की है उसी वैल्यू से हम ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे. सो एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, एंट्री विल बी मेड कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू realization account. Then the next entry is there is a debit balance of P&L account, यानी कि profit and loss appropriation account का debit balance है. This is a loss, and when the firm is dissolved, this loss will be distributing among the partner in their profit sharing ratio. And the entry is Rohit capital account debit 5,000, Kunal capital account debit 5,000, Sarthak capital account 5,000, to profit and loss account 15,000. Right? Then the last transaction, students, is Sarthak paid the realization expenses 16,000 out of his private fund, who got a remuneration 15,000 for completing dissolution process and was responsible to bear the realization expenses. सार्थक एक पार्टनर है जिसको फर्म ने एक फिक्स अमाउंट 15,000 पे किया फॉर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, और द रिस्पॉन्सिबिलिटी और रियलाइजेशन के सारे एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना भी सार्थक का काम था. बट it means that all the expenses has to be bear by the partner Sarthak, and a fixed remuneration of 15,000 paid by the firm, but the actual expenses is 16,000 जो कि सार्थक ने पे की है. अब यहाँ पर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनर ही बियर कर रहा है, इसलिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की कोई एंट्री नहीं करेंगे. ओनली एंट्री विल बी मेड दैट द फिक्स्ड अमाउंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर एंड द एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट एंड द नरेशन इज fixed amount paid by the firm to the partner. So students, this was the example number 38 and 39. Thank you.